Hello student, welcome to GATE forum. This is solution series of GATE 2022 Mechanical Engineering. So my dear friends, in this session we will see this question. So what is this? In a vapor compression refrigeration cycle, the refrigerant enters the compressor in a saturated vapor state at evaporator pressure, okay, with a specific enthalpy is equal to 250 kilojoule per kg. Well, the exit of condenser is superheated at condenser pressure with a specific enthalpy equal to 300 kilojoule per kg. Well, at the condenser exit, the refrigerant is throttled, well, to the evaporator pressure. The coefficient of performance of the cycle is 3. Well, if the specific enthalpy of saturated liquid at evaporator pressure is given, this is 50 kilojoule per kg, then the dryness fraction of the refrigerant at entry to evaporator is, और my dear friends ये कुछ आपके पास ऑप्शन is 0.2, option B is 0.3, C is 0.35, option D is 0.25. So my dear friends, that question has been asked in GATE 2022 having weightage of 2 marks. And yes, this question has been taken from the RAC, refrigeration and air conditioning, or more precisely if you tell the topic name, then yes, this is VCRS, vapor compression refrigeration system, or you can say VCRC, vapor compression refrigeration cycle. यहाँ से क्वेश्चन लिया गया. And if you talk about the difficulty level, then yes, it was moderate. अगर आपने हमारा टेस्ट सीरीज लिया होगा तो ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते थे, आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. So what is first of all draw the VCRS, vapor compression refrigeration cycle, my dear friends. And yes, it's very easy to you. So let us consider this is our temperature entropy TS diagram. Well, and this there will be dome something like that. So क्या बोल रहा है? In a vapor compression refrigeration cycle, the refrigerant enters the compressor in saturated vapor. कैसे इंटर कर रहा है? एज ए सेचुरेटेड वेपर इंटर कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से कर रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, सेचुरेटेड वेपर. ओके, let's assume this is 0.1. Then it is telling that the saturated vapor with a specific enthalpy is equal to this one. So in this question, H1 is known and the value of H1 is given here, 250 kilojoule per kg. Well, the exit of compressor is superheated at the condenser pressure with space. अब इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है. So it has been compressed something like that. Well, just a second. So straight line होगा my dear friends here. It will be something like that. So इसके बाद क्या होगा? So this is 0.1, this is 0.2, this is 0.3, and yes, this is 0.4. So यहाँ पे देखो evaporator with SP in this one at the exit of compressor is superheated, ठीक है, जहाँ पे compressor का जो exit है यहाँ पे obvious सी बात है superheated है 0.2 पे with specific enthalpy is equal to 300 kilojoule per kg. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता है बच्चों? S3 भी पता है and this is given 300 kilojoule per kg. Well, the exit of compressor is superheated, okay. At the condenser exit, the refrigerant is throttled, okay. यहाँ पे throttling हुआ है 3 पे. The coefficient of performance, इस क्वेश्चन में हमको COP पता है and the value of COP is given how much? This is given 3, as you can find, okay. If a specific enthalpy of saturated liquid at evaporator pressure, मतलब यहाँ पे ये जो आपका प्रेशर है बच्चों, ये वाला जो प्रेशर होता है, दिस इज व्हाट, इवेपोरेशन प्रेशर, कुछ इस टाइप जो प्रेशर होगा इवेपोरेटर प्रेशर होगा. सो आप बोलोगे सर HFG हमको पता है, HF पता है, नोट जी, HF पता है किस पे? एट इवेपोरेटर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर, और ये जो वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों, सो दिस इज गिवन, यू कैन फाइंड 50 किलो जूल per kg. Well, so in this question, what thing is going to ask? So in the question, the thing that is going to ask here in this question, you can find in this question what you have to calculate. You have to calculate the dryness fraction at 0.4. That means you have to calculate x4. Now think how you can do. तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लिंक से हटके, जैसे मैंने आपको बताया एज यूजुअल होता है, तो मॉडरेट लेवल हम इसलिए इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं. एंड यस, अगर आपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किया होगा तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे. देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमको x4 निकालना है, डायनेमिक फ्रैक्शन एट 0.4 निकालना है. आप क्या सोच सकते हो? सबसे पहले काम करो, इस क्वेश्चन में H1 H3 हमको पता है, सॉरी दिस इज H2 नॉट 3, दिस इज H2, है ना.
तो इस क्वेश्चन में हमको H1 पता है, H2 पता है, वेल और हमको COP पता है। तो COP क्या होगा पहले मुझे ये बताओ। तो COP जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका H रेफ्रिजरेशन इफेक्ट RE अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है माय डियर फ्रेंड्स, तो बोलोगे सर H1 माइनस H4 है सर, दिस इज आवर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और वर्क कितना दे रहे हो H2 माइनस H1। सो क्या COP आपको पता है, यस कितना पता है 3। H1 पता है क्या, यस सर, हाउ मच 250 माइनस H4 पता है क्या, नहीं पता है सर। सर H2 पता है क्या, हाँ सर पता है 300 माइनस H1 पता है क्या, यस सर 250। क्या आपको यहाँ से H4 नहीं निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यस। Just put all these value in the calculator, and after getting this value, my dear friends, you will get H4, and the value of H4 will come out to be, by solving this, will be 100 kilojoule per kg. अब देखो H4 आपके पास आ गया। H4 को आप क्या लिख सकते हो my dear friends? So you can write, sir, what you can write, HF plus X HFG. HFG बोले तो what is the meaning of HFG my dear friends? HFG means you can say, sir, HG minus HF. Is it clear? Well, so now we can say how we can do now. अब क्या करना है, हमें H4 पता है बच्चों, कितना पता है, यस सर 100 पता है H4। HF हमको पता है मेरे दोस्त इवेपोरेटर प्रेशर पे, यस कितना, सो सर दिस इज 50। हमको X नहीं पता है सर, यू हैव टू कैलकुलेट सर HG माइनस HF। HG कितना है, ये कुछ और नहीं है बच्चों, HG है कितना प्रेशर पे, एट इवेपोरेटर प्रेशर। ये इवेपोरेटर प्रेशर पे क्या आपका Hg है। तो बोलोगे सर H1 Hg इवेपोरेटर प्रेशर पे, तो वैल्यू को पता है 250 माइनस 50। वेल सो यहां से आपके पास आ जाएगा 100 इक्वल टू माइनस 50 इज इक्वल टू, वी कैन से सर हाउ मच, दिस इज 50 200x। So by solving this, you will get the value of x, and the value of x will come out to be 0.25। कितना आ जाएगा 0.25। तो आपसे ये पूछा जा रहा था, so what will be the right answer my dear friends? D is the right answer, Delhi is the right answer। so moderate था इसलिए प्रैक्टिस करो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो लेवल थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना था, एस्पोर निकालो, फिर ये कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू। Hello student, welcome to GATE forum, and this is GATE 2022 Mechanical Engineering Solution Series. So let's consider this question my dear friends. A rigid tank of volume of 8 meter cube is being filled up with air from the pipeline connected to a valve. Initially the valve is closed and tank is assumed to be completely evacuated. The air pressure and the temperature inside the pipeline are maintained at 600 kilopascal and 306 Kelvin respectively. The filling up tank begins by the opening of valve, and the process ends when the tank pressure is equal to the pipeline pressure. Well, during the filling process, heat loss to the surrounding is 100 kilojoule. The specific heat of air at a constant pressure and constant volume R, this is given 1.005 kilojoule per kg Kelvin, and another one is 0.718 kilojoule per kg Kelvin respectively. Neglect change in kinetic and potential energy, you have to neglect this. So the final temperature of the tank after the completion of the filling process is ... Kelvin, and round up to the nearest integers. So my dear friends, that the question has been asked in GATE 2022, having weightage of 1 marks. And yes my dear friends, that question has been taken from the थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स का जो मोर प्रिसाइजली आप बोल सकते हो, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया माय डियर फ्रेंड्स अनस्टेडी स्टेट एनालिसिस से। कहाँ से क्वेश्चन है, अनस्टेडी स्टेट एनालिसिस का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स दिया है, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि बच्चों के साथ यहाँ पे चॉइस हुआ है। दैट क्वेश्चन शुड बी 2 मार्क्स बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है, और आई एम डेम श्योर 90% से ज्यादा स्टूडेंट जो होगा इसमें गलती किया होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों ने क्या गलती किया होगा, लेटर ऑन आई विल टेल यू कि क्या बच्चे ने यहाँ गलती किया होगा और एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए 1 मार्क्स थोड़ा सा कम लग रहा है। बट अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे बच्चों, तो मैं उसको मॉडरेट टेबल में डालूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। यस, मॉडरेट टेबल का क्वेश्चन सही है, बट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स। सपोज करो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, लेट अस कंसीडर कुछ इस तरह से हमारे पास एक टैंक है। ये जो है एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक पाइपलाइन है, इससे कनेक्टेड है।
है ना। इस पाइपलाइन में इस टाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। जो फ्लूइड की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, और आप देखोगे सो कुछ इस टाइप से हमारे पास, है ना, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ए रिजिड टैंक ऑफ वॉल्यूम, इस टैंक का जो वॉल्यूम है बच्चों, अगर मैं इस टैंक की वॉल्यूम की बात करूं, जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यू है। बीइंग फिल्ड विथ एयर फ्रॉम अ पाइपलाइन कनेक्ट टू अ वाल्व, इनिशियली द वाल्व इज क्लोज। यहाँ पे एक वाल्व है, जो इनिशियली ये वाल्व क्या है बच्चों, ऐसे करके क्लोज्ड है। क्लोज्ड एंड टैंक इज एज्यूम्ड टू कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। इसके अंदर M1 जो होगा इनिशियल मास, M1 का इनिशियल मास ये 0 है, मतलब ये पूरी तरह से इवैक्यूएटेड है, उसमें कुछ भी एयर नहीं, पूरी तरह से इवैक्यूएटेड है। सो इनिशियल मास 0 है। ओके, द एयर पासेज एंड द टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन, द एयर प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन, ये हमारे पास मेंटेन है मेरे दोस्त। तो पाइपलाइन को मैं PI बोल देता हूँ। पाइपलाइन जो है उसका जो प्रेशर है बच्चों, जो पाइपलाइन जो इसमें जो प्रेशर है PI, जो हमारा गैस फ्लो कर रहा है, ये प्रेशर आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और इस प्रेशर का जो वैल्यू है यहाँ पे, इस प्रेशर का जो वैल्यू है, सो दिस इज गिवन हाउ मच, प्रेशर का जो है दिस इज गिवन 600 किलो पास्कल। एंड यहाँ पे और जो नेक्स्ट आप बात कर रहे हो कि जो टेम्परेचर है TI, सो दिस इज गिवन हेयर 306 केल्विन। ओके, 306 केल्विन। वेल, सो नाउ द फिलिंग ऑफ टैंक इज बिगिंस बाय ओपनिंग ऑफ valve। अब हम क्या करें, इस valve को हटा दे रहे हैं और इस तरह से फ्लूइड को हम अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। प्रोसेस एंड द टैंक प्रेशर इक्वल टू पाइपलाइन, मतलब ये जब तभी भी बंद होता है जब तक यहाँ का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस हीट लॉस टू द सराउंडिंग, जब ये फिल कर रहे हैं उस दौरान हीट लॉस हो रहा है, जो बाहर जा रहा है बच्चों, ये कितना जा रहा है, 1000 किलो जूल है हीट, जो आपको बाहर भी जा रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर जो आपको पता है, CP जो पता है, सो दिस इज गिवन 1 पर नहीं भी दिया होगा तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट आप याद रखो, ठीक है, CP एयर के लिए स्पेशली। एंड CP इज गिवन 0.718 किलो जूल पर केजी। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन है, whenever such kinds of question is going to ask, you have to just keep in mind only two things। चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना है और कितना भी इजी क्यों ना है, you have to just do two things। फर्स्ट, you have to do the mass conservation। फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, मास कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है, मास कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन क्या बोलोगे कि सर जितना मास आ रहा है, मतलब मास कंजर्वेशन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लगाएंगे, मान लो इसके बाद का मास M2 है। M2 क्या है, फाइनल मास है। M2 क्या है, फाइनल मास है। MI क्या है बच्चों, MI है जो मास इंटर कर रहा है, मास इंटर, मास जो क्या कर रहा है आपका, इंटर कर रहा है, ये MI है। तो बोलोगे सर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा M2, ठीक है, माइनस M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम आई माइनस ऑफ एम ई क्या है, एग्जिट। तो यहाँ पे आप देखोगे चूंकि इसमें कोई भी एग्जिट नहीं हो रहा है तो एम ई आपका 0 हो जाएगा। कोई भी एग्जिट नहीं आ रहा है, सिर्फ इसको फिल हो रहा है, कहीं लीकेज विकेज नहीं, कुछ भी एग्जिट नहीं हो रहा है। और M1 इनिशियली कुछ भी नहीं था बच्चों, 0 था, इवैक्यूएटेड था, यू कैन फाइंड हियर। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सर M2 इक्वल टू MI, हमारे पास ये आ गया मास कंजर्वेशन से। दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास इसके लिए अवेलेबल है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन। सो अगर आप सेकेंड इक्वेशन को यूज करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों, सो दिस इज DU इक्वल टू होता है MIHI प्लस ऑफ Q माइनस MEHE, E मतलब एग्जिट मास, He मीन एग्जिट इंथैल्पी, माइनस ऑफ W ऑफ CV। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ भी वर्क डन नहीं हो रहा है तो W 0 हो जाएगा, ME 0 है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास DU आ जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे U2 माइनस U1 हो जाएगा MIHI प्लस ऑफ Q। लेट मी टेक अनदर स्लाइड। सो वी कैन से कि सर हमारे पास क्या था, U2 माइनस U1 था, एंड दिस इक्वेशन वाज MIHI प्लस ऑफ Q। U2 को क्या लिखूंगा बच्चों,
M2 और U2 माइनस M1 U1 इक्वल टू MI HI प्लस Q। लेकिन आप जानते हो कि सर M1 तो जीरो था, M1 कहाँ था मेरे दोस्त? सो M1 जीरो था सर, M1 जीरो था, कुछ भी इनिशियली इवैक्यूएटेड था, तो M2 U2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास MI HI प्लस अब Q। अब देखो क्या हमें क्वेश्चन में M2 पता है क्या मेरे दोस्त? M2 पता है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, M2 तो नहीं पता है मेरे दोस्त, बट हम निकाल सकते हैं T2V2 अपॉन RT2। देखो आप लिखोगे PV इक्वल टू MRT, है ना? तो अगर हमको M चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ? PV अपॉन RT लिख सकता हूँ ना। तो चूंकि M2 चाहिए तो P T2 भी तो ऐसा ही है, R इंटू T2। तो यहां से थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा टर्म में, तो आप बोलोगे कि सर यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M2 U2 को क्या लिख सकता हूँ? CV इंटू T2 इक्वल टू MI मास फ्लो रेट MI है, तो MI इंटू HI को क्या लिख सकते हैं बच्चों? CPTI, है ना, प्लस Q। अब देखो M2, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे Q सिस्टम में जा रही है, आउट हो रहा है, तो माइनस है तो माइनस अब यूज करो क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? M2 CVT2 इक्वल टू MI CPTI माइनस ऑफ 1000। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है। अब देखो M2 को हम क्या लिख सकता हूँ बच्चों? P2V2 अपॉन R2, M2 है ना, तो P2V2 अपॉन R2, इसको मैं लिख रहा हूँ P2 V1 V2 तो एक ही है, V अपॉन R T2 इंटू CP इंटू T2 CV, ये T2 T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को मैं MI को भी मैं लिख सकता हूँ, MI समझ में आ रही बात, दोनों क्या बराबर है। हम इसको लिख सकता हूँ बच्चों T2 है ना, V अपॉन R T2। देखो बच्चों M2 इक्वल टू है ना, यहाँ पे ये यू कैन फाइंड ना, M2 इक्वल टू MI, दोनों क्या है? सेम है ना। सो बाय दिस, ओके, सो दिस इज इनटू TI माइनस ऑफ 1000। सो यहाँ जस्ट पुट दी ऑल दिस वैल्यू। P2 कितना है? जब तक फाइनल P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, PI इक्वल टू P2 हो जाएगा, क्योंकि जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये था हमारे पास 600, लेटर ऑन आई राइट हियर 600, भी कितना था? 8 अपॉन R होता है 0.287, T2 कितना था? T2 T2 कैंसिल आउट, नो नीड टू वरी, इनटू CV कितना बच्चों? 0.718। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हटा दो, ठीक है। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.718 इक्वल टू 600 इंटू 8 T2 भी अपॉन R 0.287 इंटू T2। TI कितना है बच्चों? दिस इज गिवन, TI इज गिवन 600 306। TI कितना दे रखा है? लेट मी चेक। इनिशियल टेम्परेचर 306 इज गिवन, सो यस 306 इंटू CP 1.008 है ना, 1.005 दे रखा है, तो 005 माइनस 1000। अब को आपको यहां से क्या करना है? T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, एंड बाय डूइंग दिस विल गेट द वैल्यू इज 395.388 केल्विन। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन था, वन नंबर जायज नहीं था, पर ठीक है, 395.338 395.338 आपको पुट करना है, 395.388, ओके 388। सो ये हो जाता है आपका केल्विन में आंसर, ओके। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है? मोस्टली स्टूडेंट लगा देता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ गलती क्या करता है, लिखेगा T2 इक्वल टू गामा TI। क्या लिखता है मोस्टली स्टूडेंट? जो मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक मेड बाय स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक्स करेगा मालूम है? वो लिखेगा T2 इक्वल टू गामा TI, और ये आंसर गलत है बच्चों। ये तब होता है गामा जब क्या होता है, व्हेन जितना क्वेश्चन में कंडीशन है, ये तो होना ही चाहिए, कंडीशन मतलब इवैक्यूएटेड होना चाहिए, इवैक्यूएटेड अगर होना चाहिए, साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए।
इंसुलेटेड। बट इस क्वेश्चन में आप देखो क्या इंसुलेटेड है, क्या हीट लॉस हो रहा है ना, तब जाके ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है, तब जाके आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। यहीं पे सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं, इसी में आप ये बोलोगे सर कैसे आया, तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बताऊं, सपोज करो अगर ये जीरो हो जाता, मतलब हीट लॉस नहीं होता, तब आप क्या बोलते, तब आप बोलते ना कि सर तब हो जाएगा M2 CV T2 इक्वल टू M2 Mi इक्वल टू M2 ही है CP Ti, है ना, यहाँ से M2 चला गया, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताओ, तो बोलोगे सर CP अपॉन CB इंटू टी आई। CP अपॉन CB क्या कहलाता है, गामा कहलाता है, ये TI है, तो हो जाएगा गामा इंटू टी है ना, अरे ये क्या हो रहा है, गामा इंटू टी है। बट ये कब, जब ये इवैक्यूएटेड होगा, जब कोई भी हीट इसमें लॉस या पास नहीं हो रहा होगा, ओनली सच केस आप ये लगाते हो, इवैक्यूएटेड और लॉसेज वैसे ना हो। बट इस क्वेश्चन में देखो ये लॉस दे रखा है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप ये नहीं लगा सकते, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ओके देखो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है गेट में, सो मोर प्रोबेबली इन द कमिंग टाइम और इन नेक्स्ट टाइम आप ऐसा भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें M10 ना हो, जैसे यहाँ पे M10 है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फर्दर मॉडिफाई कर सकता है आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में, जब आपको M10 ना दे। सो बच्चों बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसका मेन इक्वेशन याद रखो मास कंजर्वेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन का, ये दो इक्वेशन याद रखो, पेरेंट इक्वेशन है, कोई भी एनएसटीडी का क्वेश्चन क्यों नहीं हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थैंक यू। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ अनदर क्वेश्चन, ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Hello student, so welcome to the GATE forum. This is next question on GATE 2022 mechanical engineering solution series, my dear friends. So let us consider this question. So what is this? Consider 1 kg of an ideal gas at 1 bar and 300 Kelvin contained in a rigid and perfectly insulated container. The specific heat of gas at a constant volume Cv is given 750 joule per kg per Kelvin. A perform 2 to 5 kilojoule of work on the gas. Assume that container does not participate in the thermodynamics interaction. The final pressure of the gas will be ... bar in integers. And yes, my dear friends, that question has been asked in GATE 2022, having weightage of 2 marks. अगर आप बात करोगे that yes, its question has been taken from the thermodynamics. और thermodynamics का कौन सा सब टॉपिक, my dear friends? So we can say sir this is from the heat and work. हीट एंड वर्क से लिया गया है, और आप इसी को बोलते हो एनर्जी इंटरेक्शन, इसी चैप्टर को क्या बोलते हो, एनर्जी इंटरेक्शन, ओके। सो ये जो लिया गया है हीट एंड वर्क और एनर्जी इंटरेक्शन से क्वेश्चन लिया गया। सो कंसीडर 1 kg of an ideal gas at 1 bar and 300 Kelvin contained in a rigid and perfectly insulated container. So suppose this is rigid and perfectly insulated container. What is the meaning of rigid, my dear friends? यहाँ पे जो rigid बता रहा है ये आपको क्या बताना चाहता है, rigid कभी भी क्वेश्चन में देखो मैं आपको बताया था कीवर्ड, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। सो वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 मीटर क्यूब, है ना, वॉल्यूम दे रखा है क्या, लेट जस्ट अ सेकंड, रिजिड वॉल्यूम नहीं दे रखा है, नो नीड टू वरी। हमें जो दे रखा है क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है यहाँ पे कितना 1 kg दे रखा है, एंड प्रेशर आपको दे रखा है, इसके अंदर जो है P है वो आपको 1 बार दे रखा है, एंड T जो है इसके अंदर का, अगर मैं बोलूँ ये T1 मान लो, P1 मान लो इनिशियल, सो दिस इज गिवन 300 Kelvin, ओके। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम Cv आपको पता है, एंड दिस इज यहाँ पे दे रखा है 750 जूल पर केजी केल्विन। यहाँ पे एक स्ट्रेयर लगा हुआ है बच्चों, क्या लगा रखा है उन्होंने, एक स्ट्रेयर लगा रखा है, और ये कुछ इस टाइप से स्ट्रेयर है इधर, मतलब एक इस टाइप से कोई यहाँ पे पंखा है, ठीक है, इस टाइप से कोई क्या है, एक पंखा लगा हुआ, थोड़ा अच्छा से पंखा ड्रॉ कर लो। इस टाइप से क्या लगा हुआ है, फैन, ये रोटेट कर रहा है, वर्क कितना कर रहा है ये जो वर्क कर रहा है 225 किलो जूल वर्क, इसमें गैस है ना, ये सब क्या गैस है, ओके। सो अब आप बोलो, इसमें पूछ रहा है assume that content does not participate in interaction, the final pressure of the gas will be, that means आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, T2 पूछा जा रहा है कि P2 क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है मेरे लिए, बिल्कुल आसान है बच्चों, क्यों क्यों आसान है सर, क्योंकि सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसे पता चला सर, रिजिड कंटेनर लिख रखा है ना सर,
ये हमेशा मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो मैं समझता हूँ सर पीवी इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी होता है। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँ सर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी इक्वल टू एम आर टी अपॉन वी। सर ये टर्म्स पूरा पूरा कांस्टेंट है सर, मास आर, तो यहाँ पे सर पी इज प्रोपोर्शनल टू टी है सर। सो हम लिख सकते हैं पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्या, पी टू अपॉन टी टू। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन में हमें पी टू निकालना है, तो पी टू क्या हो जाएगा सर, पी टू हो जाएगा पी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। बट सर दिक्कत है हमें टी टू नहीं पता है, हमें टी टू नहीं पता है, टी वन तो हमें पता है सर, पी वन भी पता है, पी वन पता है, टी वन पता है, बट सर हमें टी टू नहीं पता है। नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो बोलोगे सर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है सर फॉर अ प्रोसेस। ये है थर्मोडायनेमिक्स, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस, है ना, प्रोसेस के लिए होता है। सो सर डी क्यू कोई भी हीट लॉस नहीं होगा बिकॉज इंसुलेटेड है, तो ये हो जाएगा डी यू प्लस ऑफ डी डब्ल्यू। बट सर वर्क किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक बात बताओ, ये डी डब्ल्यू पिस्टन वर्क होता है बच्चों, तो डी डब्ल्यू और एक और काम लिख सकते हो प्लस अदर वर्क जो होता है, अगर आप करोगे इसको तो प्लस अदर अदर वर्क। जैसे अगर आप इसको पिस्टन वर्क बोलते हो है ना, डी डब्ल्यू को सिर्फ पिस्टन बोलते हो, तो अदर वर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब ये सी बात है पिस्टन वर्क तो जीरो हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू अदर वर्क जो होगा वो किया गया है। तो आप बोलोगे सर डी यू, है ना, डी यू क्या हो जाएगा सर, एम सी भी टी टू माइनस टी वन। और सर ये हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि सिस्टम पे किया जा रहा है सर, माइनस टू टू फाइव। मुझे बताओ इधर हो जाएगा टू टू फाइव इक्वल टू एम, एंड एम कितना है सर वन, सी भी कितना दे रखा है सर, तो ये है बच्चों किलो में, तो सी भी किस में रखो, किलो में लिखो। तो क्या हो जाएगा 7 7 5, सी भी कितना देगा 750 दे रखा, ओके 750 अपन 1000 कर दो किलो में करने के लिए, वेल या टी टू माइनस थ्री कर दो इंटू टी टू, नहीं पता सर, टी वन पता है सर कितना 300। क्या आप यहाँ से टी टू नहीं निकालोगे मेरे दोस्त, बिल्कुल निकाल सकते हो बाय सॉल्विंग दिस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टी टू आ जाएगा मेरे दोस्त। सो दैट वैल्यू विच कम आउट टू बी, टी टू जो आपका आ जाएगा यहाँ से, वो टी टू जो हो जाएगा 600 केल्विन, 600 केल्विन। सो आपके पास टी टू आ गया कितना 600 केल्विन। एक बार आपके पास टी टू आ गया तो काम बन गया। कैसे काम बन गया, तो सर यहाँ पे जस्ट हमको वैल्यू तो पुट करना है। अब अपने को करना कैसे, वैल्यू तो पुट करना है यहाँ पे। सो इसको अगर हम लिखेंगे, अगर यहाँ चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। सो पी टू इक्वल टू हो जाएगा पी वन। टी वन कितना दे रखा है सर बार में, अगर मैं बात करूँ, सो हमारे पास जो पी वन है, सो दिस इज गिवन हाउ मच हियर यू कैन से, सो पी वन दे रखा है हमारे पास वन इंटू टी टू, अभी अभी आपने फाइंड किया 600 अपॉन 300, सो दैट्स यू गेट पी टू इक्वल टू 2 बार। सो पी टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना पुट करना था, पेनेटी क्वेश्चन था, मेडिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, 2 पुट करना था। तो इजी क्वेश्चन था, मतलब ठीक है मॉडरेट ही बोलोगे, बहुत इजी भी नहीं था, कोई डिफिकल्ट भी नहीं था, आराम से। यहाँ पे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, देखो ये पिस्टन वर्क है ना डीडब्ल्यू, अगर पिस्टन वर्क है तो पिस्टन यहाँ थोड़ी ना मूव करेगा बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्लस अदर वर्क जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, या उसके बाद आप अगर बात करोगे पुल्ली वर्क वगैरह हो गया, तो वो सब अदर वर्क में यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तरह ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या पुल्ली वर्क ही है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम अनदर क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, welcome to the gate forum. So this is gate 2022 mechanical solution series, my dear friends. Let us consider this question. So at steady state 500 kg per second of steam enters a turbine with a specific enthalpy is equal to 35 kilojoule per kg and specific entropy is equal to 6.5 kilojoule per kg Kelvin. It expands reversibly in a turbine. It expands reversibly, okay, in a turbine to a condenser pressure. Heat loss occurs reversibly in the turbine at temperature of 500 Kelvin. Heat loss occurs reversibly in the turbine at a temperature of 500 Kelvin. If the exit specific enthalpy and specific entropy are 2500 kilojoule per kg and 6.5, 6.3 kilojoule per kg respectively, the work output from the turbine is dot 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 megawatt in integers. So my dear friends, that question has been asked in GATE 2022. हैविंग वेटेज अप टू मार्क्स, यस ये जो है आपको थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप बोलोगे सर ये मोर प्रिसाइजली कहा तो हीट एंड वर्क, और इसमें यस थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी जनरेशन का भी इन्वॉल्व है, या एंट्रोपी का भी है ना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, सो लेट्स अज्यूम दिस इज आवर टरबाइन, ओके।
सो आप बोलोगे सर अगर हम ये जानते तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ds अपॉन dt चूंकि ये रिवर्सिबल है, cv जो हो जाएगा बच्चों, सो इट विल बी एंट्रोपी जनरेशन si प्लस ऑफ x जनरेशन माइनस ऑफ se हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप बोलोगे सर चूंकि ये रिवर्सिबल है ये तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, si हो जाएगा पूरा के लिए m डॉट इंटू s वन, अगर यहाँ पे वन बोल देते हैं, फिर SiS2 जो भी है, देन नेक्स्ट विल बी व्हाट माइनस ऑफ m डॉट s2 प्लस ऑफ q अपॉन जो भी टेम्परेचर है, सो दिस इज गिवन 500 जनरेशन का, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी 500 6.5 माइनस ऑफ 6.3, m कॉमन ले लिया हूँ, m हमें जो यहाँ पता है 500, ठीक है। फिर S1 माइनस S2 जो हो रहा है, फिर माइनस फिर q अपॉन 500। सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ q, और जो q का जो वैल्यू आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स बाय सॉल्विंग दिस विल गेट दिस वैल्यू 50 मेगावाट। कितना, दिस विल कम आउट टू बी 50 मेगावाट। वंस आपके पास 50 मेगावाट आ गया, so now just by conservation of energy, now by conservation of energy, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो बोलोगे सर जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, ई इन इक्वल टू क्या होना चाहिए, और जो भी आ रहा है सब जाना चाहिए, एम ई इन क्या हो जाएगा, एम आई एच वन इक्वल टू एम डॉट एच टू प्लस ऑफ क्यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम डॉट एच वन माइनस ऑफ एम डॉट एच टू इक्वल टू क्यू डॉट प्लस ऑफ डब्ल्यू। यस, सो यहाँ से लिख सकते हो 500 H1 जो हमारे पास दे रखा है 3500 माइनस ऑफ 2500 इक्वल टू कितना है 50,000 प्लस ऑफ डब्ल्यू। ओके, यहाँ से वर्क आपको निकल जाएगा 450 मेगावाट। तो वर्क कितना आ गया यहाँ से बाय सॉल्विंग दिस, अब बोलोगे सर वर्क जो आ गया हमारे पास वो आ गया 450 मेगावाट। तो आपको क्वेश्चन किसमें पूछ रहा था, मेगावाट में पूछ रहा था, तो यहाँ में कितना पुट करना था आपको 450। तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन ही था, इजी साइड था, और आप आराम से इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, GATE 2022 Mechanical Engineering Solution Series. So this question is, which one of the following is an intensive property of thermodynamic system? Option A is volume, option B is mass, option C is energy, option D is density. So yes, my dear friends, that question has been asked in GATE 2022, having weightage of 2 marks. Yes, very obvious question. It is the question has been taken from the thermodynamics, and more precisely we can say from the basic of thermodynamics, like property, what is property system, like that. So that question has been asked on the property. Okay, so intensive is what, the property which is independent from the mass. Okay, so जो भी mass से क्या होगा, independent होगा, will be called is what, intensive property. And one more thing you have to understand, intensive property, whenever you talk about the extensive upon extensive, my dear friends, it will always be intensive. Okay, if you talk about density, so what is density? This is mass upon volume, and mass is itself extensive and volume is what, extensive. So you can say that this is ratio, rho is ratio of two extensive property, my dear friends, so it will always give intensive. So in this question you can say it is intensive, D, that means density is the intensive property. Okay, तो कभी भी याद रखना है, जब कभी भी आप दो extensive का take the ratio, always it will comes the intensive. Okay, well, thank you. Hello student, welcome to GATE forum. And yes, this is the GATE 2022 Mechanical Engineering Solution Series. So in this question, we will discuss this question, my dear friends. An engine running on an air standard Otto cycle has displacement volume, and this is given 250 centimeter cube, and clearance volume is given 35.7 centimeter cube. The pressure and temperature at the beginning of compression process are 100 kilopascal and 300 Kelvin respectively.
Heat transfer during a constant volume heat addition process is 800 kilojoule per kg. The specific heat at a constant volume is given 0.718 kilojoule per kg Kelvin, and the specific and the ratio of specific heat at a constant pressure and constant volume is given. That value is 1.4. That means gamma is known. Assume the specific heat to remains constant during the cycle. Okay, the maximum pressure in the cycle is dot 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 kilopascal. Round off to the nearest integer. That means that was the question of the NET numerical answer type question, my dear friends. So that question has been asked in GATE 2022. GATE 2022. Having weightage of 2 marks. The क्वेश्चन आया था आपका सेट 1 में, एंड यस इट्स वेरी ऑब्वियस, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो लिया गया था वो आईसी इंजन से लिया गया था, और इसमें आप बोलोगे तो ऑटो साइकिल से लिया गया था. सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द ऑटो साइकिल माय डियर फ्रेंड, देन वी विल डिस्कस द सम मोर थिंग्स. Suppose this is our PV diagram, okay. And this is our PV diagram. So you know this is auto cycle. It's very obvious. The cycle will be what? Clockwise, because जितना भी auto cycle होता है बच्चों, सभी क्या होता है? Work producing cycle होता है ना? Auto cycle हो या diesel cycle हो, जब भी work producing cycle होगा, it will be clockwise. Okay. So let's assume this is point 1, this is point 2, this is point 3, and yes, this is point 4. So first of all, tell me what data is given in this question. What you have to calculate? Assume the specific heat again, the maximum pressure in the cycle. That means in this cycle you have to calculate P3. आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको P3 कैलकुलेट करना है. यही क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि P मैक्सिमम है, और यही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. सो बिफोर थिंकिंग दैट, सबसे पहले देखो व्हाट डाटा इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. आपके पास डाटा क्या अवेलेबल है? सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम दैट पॉइंट दिस विल बी कॉल्ड इज व्हाट? Vc, और यू कैन से Vs, स्वेप्ट वॉल्यूम. और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड Vc. दैट मींस Vc बोले तो वी कैन से क्लियरेंस वॉल्यूम. Vc क्या है बच्चों? दिस इज योर क्लियरेंस वॉल्यूम, and Vs is what, my dear friends? This is swept volume. So in this question we can see that Vc clearance volume is given here 35.7. So well sir, 35.7 cm3, and swept volume is also known, sir. How much? This is here, you can find 250 centimeter cube. Well, so this data is given, okay. And some more information is given in this question. The pressure and temperature at the beginning of the compression. तो compression beginning कहाँ से हो रहा है बच्चों? 1 से 2. So आप बोलोगे सर हमें इस क्वेश्चन में क्या पता है? P1 पता है, and this is given 100 kilopascal, and yes आपको T1 भी पता है, and this is given, my dear friends, here we can see 300 Kelvin. यहीं के प्रेस कंप्रेशन स्टार्ट होता है इस प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन has been given in the question. And yes, इसमें आपको CV भी दे रखा है, C भी दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वो तो नहीं भी दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, यू हैव टू रिमेंबर. वेल, ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है. नाउ सी व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, माय डियर फ्रेंड्स. सो यू हैव टू कैलकुलेट P3. नाउ स्टार्ट थिंकिंग. Yes, one more data is given here. Heat transfer during the constant volume heat addition is 800 kilopascal. तो हीट ट्रांसफर, हीट एडिशन कहां से कहां हो रहा है बच्चों? 2 to 3. तो आपके पास जो Q 2 to 3, दिस इज नॉन इन दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज 800 किलोजूल पर केजी नॉन. और ये हीट आप यहीं पे ऐड करोगे ना, यहाँ पे ऐड करोगे. इस क्वेश्चन में आपको निकालना है P3. तो अब सोचो हम P3 कैसे निकाल सकते हैं. मैं आपको बार बार बताता हूँ. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चंस. सो यू थिंक, आपको ऐसा लगा कि सर यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट द P3. नो, स्टार्ट थिंकिंग हाउ आई कैन, मैं कैसे कर सकता हूँ बच्चों. सो आप बोलोगे सर अगर मैं 2 to 3 की बात करूँ, 2 to 3 उनको दिख रहा है प्रेस. यहाँ का अगर मैं बात करूंगा सर, तो वॉल्यूम क्या है सर? कांस्टेंट है ना. वॉल्यूम कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है सर. वेल, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा सर, तो हम तो जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है सर? एमआरटी होता है ना. तो सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ P इक्वल टू एम आर अपॉन V इंटू टी. इसको मैं एक अदर कांस्टेंट बोल देता हूँ कि V भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है. तो क्या P प्रोपोर्शनल टू T आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा. तो क्या मैं यहाँ से बोलूंगा कि सर P2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 अपॉन T3? बिल्कुल सर.
सर हमको कैलकुलेट तो T3 करना है ना सर, हमको P3 कैलकुलेट करना है, हम आराम से निकल जाएगा सर, आराम से निकल जाएगा। लेकिन बच्चों क्या इस क्वेश्चन में आपको T2 पता है क्या? क्या आपको P2 पता है क्या? क्या आपको T3 पता है क्या? बोलोगे सर नहीं पता है सर। अगर क्वेश्चन में अपन को किसी भी तरीका से T2 निकल जाए, T2 निकल जाए, T3 निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब आपको इसी पे दिमाग लगाना है कि हाउ आई कैन डू, इसे मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके वेल, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आप सोचना स्टार्ट करो। आप बोलोगे कि सर अगर हम प्रोसेस 1 से बात करता हूँ, प्रोसेस प्रोसेस 1 से 2 मैं बात करता हूँ सर, तो 1 से 2 क्या है सर? दिस इज कंप्रेशन, आइसोट्रोपिक कंप्रेशन आप बोलोगे। यस। सो सर एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन नहीं पता है हमें, तो एक बात बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर आप बोलोगे कि सर T2 अपॉन T1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब आप बोलोगे सर अब बताओ यहाँ पे हमें T1 तो पता है सर, T1 कितना पता है? 300 केल्विन पता है सर। सर ना तो हमें T2 पता है सर, है ना तो हमें P2 पता है सर, T1 तो खैर पता है सर। दिस इज कैसे हम निकाल सकते हैं सर? गामा भी हमको पता है इस क्वेश्चन में सर, 1.4 गामा पता है सर, बिकॉज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे कर सकते हैं, ना तो हमको P2 पता है तो ना T2 पता है सर, कैसे कर सकते हैं बच्चों? यस, यही था जहां पे आप फंसोगे। यहाँ पे अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप सोचना स्टार्ट करोगे क्या इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल डाटा है क्या? हाँ सर डाटा है। सर यहाँ पे VSBC क्यों दिया था सर? VSBC क्यों दिया था? हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, आपके पास दूसरा इक्वेशन ये होता है कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स कंप्रेशन रेशियो R के पावर गामा माइनस 1, ये भी हमारे पास है गामा माइनस 1। हमारे पास R पता है क्या? कंप्रेशन रेशियो R यहाँ पे क्या है बच्चों? R इज हियर, आप जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे R क्या है? दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। आप बोलोगे सर हमें क्वेश्चन में R भी तो नहीं पता है, तो बताइए अब कैसे करें? ओके बच्चों R नहीं पता है, लेकिन एक बात बताओ R हम निकाल सकते हैं क्या? R जो है क्या मैं यहां से चाहूंगा तो निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स? कैसे निकाल सकता हूं? तो आप बोलोगे सर R क्या था? कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? लेट मी टेक अनदर स्लाइड। सो आप बोलोगे सर R क्या था हमारा? कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो होता क्या माय डियर फ्रेंड्स? सो बोलोगे सर R जो है दिस इज कंप्रेशन रेशियो, और उसकी जो वैल्यू होता है ये हमेशा होता है सर V1 अपॉन V2 सर, है ना। वेल, सो V1, अब एक बात बताओ मेरे को दोस्त, आप V1 को क्या लिख सकते हो? 1, है ना। V1 यहां से लेके यहां तक आपका V1 है ना। तो आप V1 को क्या VC प्लस VS लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। सो ये हो जाएगा हमारे पास VC प्लस और VS अपॉन V2 को क्या लिख सकते हो? V2 को तो बोलोगे सर VS, V2 सॉरी, ये V2, तो ये क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। सो वेल VC। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस VS अपॉन VC। So my dear friends, 1 plus what is the value of VS? So we can say the value of VS is given in this question 250 upon 35.7. 250 upon 35.7, well 35.7। क्या आपको यहाँ से R की वैल्यू आ गया बच्चों? यस, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 8 के बराबर आ जाएगा। बोलोगे वेल, अब आपके पास अगर एक बार R की वैल्यू आ गया तो अब आप क्या कर सकते हो? बोलोगे सर अब जाके हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं सर, अब जाके ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो लगा लो बच्चों, अच्छी बात है। सो बोलोगे सर हम जानते हैं T2 अपॉन T1 अपॉन R के पावर गामा माइनस 1। सो सर T2 हमको नहीं पता है सर, T1 इज नोन हियर एंड R जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड 8, 1.4 माइनस 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके वेल। सो क्या यहाँ से आपको T2 निकल जाएगा? क्या आपको T2 निकल जाएगा? बोलोगे बिल्कुल निकल जाएगा सर। T2 जो यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 689.2 केल्विन। सो हमारे पास T2 आ गया मेरे दोस्त, T2 आ गया 689.2 केल्विन। बोलोगे ठीक है सर T2 आ गया, अच्छी बात है, आगे भी तो चाहिए हमें। आपने T2 निकाल लिया, आपने T2 निकाल लिया,
है ना। अब सर मुझे बताओ, हमें P2 नहीं पता है सर, P2 नहीं पता है बच्चों। क्या अब आप यहाँ से P2 नहीं निकाल लोगे क्या? अगर आप चाहोगे तो, अगर आप चाहते हो तो क्या आप यहाँ से P2 नहीं निकाल सकते हो क्या? बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ, T2/T1 के बाद गामा माइनस 1 अपन गामा से यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? या और भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, आराम से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, वेल सो आते हैं इस पॉइंट पे। अब आप मुझे बताओ फर्दर, अब हमको एक क्वेश्चन में एक और चीज नहीं पता है। T2 भी हम निकालेंगे, पहले हम T3 निकालते हैं। हमें T3 नहीं पता है, तो T3 के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? आप बोलोगे सर Q जो देखो Q223 क्या दे रखा है, Q जो है 223 ये हमको दे रखा 800 किलो जूल पर केजी, है ना। वेल अच्छी बात है, यस सर ये हमको दे रखा है। ये जो अगर हमको दे रखा है बच्चों, तो यहाँ से आप बताओ Q223 कितना है, 800, और ये जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा CV T2 T3 हाईएस्ट है तो T3 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू CV कितना है बच्चों, 0.718। ये किलो में, लेट मी चेक, 800 किलो है, यस किलो है। वेल तो ये भी किलो में रखो, CV भी इनटू T3 नहीं पता है सर हमको। सर T2 अभी अभी हमने निकाला कितना, 689.2। क्या आप मुझे मेरे को बताओ, क्या आपको यहाँ से T3 नहीं निकल जाएगा बच्चों? हंसते हुए निकाल सकते हो सर, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, है ना। 800 अपॉन ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड 0.718। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, सो माय डियर फ्रेंड्स बाय सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ T3। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो T3 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1803.426। ठीक है, ये आ गया केल्विन। मतलब अगर हमको बात करूंगा तो T3 भी हमारे पास आ गया 1803.426 केल्विन। चलो वेल सर, क्या हमारा काम समाप्त हो गया क्या? नहीं बच्चों, हमारा काम समाप्त नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी भी हमारे पास क्या नहीं है, अभी भी हमारे पास P2 नहीं है, इसीलिए हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है सर, अब अपने को P2 निकालना है सर, P2। तो P2 को हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, यू नो, अगर हम जाने, सो यू नो यू कैन राइट सर P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस 1 होता है ना। सो सिंपली आप बोलोगे सर, यहाँ से अगर हम बात करूँ तो आ जाएगा P2/P1 इज इक्वल टू गामा 1 चला जाएगा, सीधा बचेगा R के पावर गामा। सो यहाँ से सर P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू R के पावर गामा। सो सर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप क्वेश्चन में सोचना, थिंकिंग डेवलप करो। एक बार आप चीजें सोच पा रहे हो, दैट मीन्स आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। P1 आपको पता है मेरे दोस्त, है ना। P1 आपको पता है, कितना पता है, दिस इज 900। R कितना है बच्चों, 8 के पावर 1.4। यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा P2 का बाय सॉल्विंग दिस, द वैल्यू ऑफ दिस विल कम आउट टू बी 1837.92 किलो पास्कल। आपके पास P2 भी आ गया माय डियर फ्रेंड्स। नाउ एवरीथिंग इज नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यू हियर। सो आप बोलोगे सर यहाँ से हम लिखूंगा, क्या लिखोगे एक बार लिख में चेक, P2/T2 इक्वल टू P3/T3, P2/T2 इक्वल टू P3/T3। हमको चाहिए क्या, P3। सो माय डियर फ्रेंड्स P3 विल बी T2 इंटू T3/T2। सो P2 अभी अभी आपके पास आया, P2 कितना आया, 1837.92, 1837.92 इंटू T3 कितना था मेरे दोस्त, 1803.46, 1803.426 आई थिंक, यस 426 अपॉन T2 कितना था मेरे दोस्त, 689.2, सो 689.2। बस आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद यहाँ से कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, अब P3 का जो वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा 4809.13 किलो पास्कल। सो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी नहीं था बच्चों। आप बोलोगे सर ये तो बहुत लेंथी नहीं था, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में था अभी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, ये चीजें स्पेशली ये वाली टर्निंग पॉइंट था बच्चों, ये वाला टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको ये पता है देन इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर जो बच्चा को सिर्फ ये वाली पता है
जो ये जानता है, तब ये ट्रैप हो जाएगा क्वेश्चन में, ये ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि इसको ना तो P2 पता है ना T2 पता है, देन यू विल गेट ट्रैप। तो बच्चों इन सच केस यू हैव टू यूज दिस ऑप्शन, इसीलिए आपको ये BC और BS दे रखा था। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आपके साथ खेलता है ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू। Yes, hello student, all of you in the next question in the GATE 2022 solution series of mechanical engineering. So let us take this question, my dear friends. So what is this question? A polytropic process is carried out from an initial pressure of 110 Pascal, kilopascal and volume of 5 meter cube to a final volume of 2.5 meter cube. Okay, the polytropic index is given by n equal to 1.2. The absolute value of work done during the process is a kilojoule round of two decimal places. My dear friends, that question has been asked in GATE 2022, having weightage of 2 marks, ask in set 1। और ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया बच्चों? थर्मोडायनामिक्स से लिया गया। अब मोर प्रिसाइजली बोलोगे थर्मोडायनामिक्स से कौन सा टॉपिक से सर? तो हीट एंड वर्क, दैट मीन्स एनर्जी इंटरेक्शन, हीट एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया। that this is also known as what? Energy interaction। तो यहाँ से क्वेश्चन लिया गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल बोलोगे तो आप इजी ही बोलोगे, क्लोज टू इजी, है ना, बिकॉज ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज कैरीड आउट फ्रॉम इनिशियल प्रेशर, आपको दे रखा है दिस वन। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस ड्रॉ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फर्स्ट। सो दिस इज आवर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ओके, पीपी डायग्राम। सो देखो इनिशियल प्रेशर है 100 किलो पास्कल एंड दिस फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम देखो, इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैरीड आउट इनिशियल प्रेशर, दैट मींस P1 मैं बोल देता हूँ, दिस इज गिवन 110 किलो पास्कल 12 एंड वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है इन दिस क्वेश्चन? सो दिस इज गिवन 5 मीटर क्यूब, ओके, एंड V2 कितना दे रखा है? V2 इज गिवन 2.5 मीटर क्यूब। तो मुझे बताओ ये कंप्रेस हुआ है कि एक्सपैंड हुआ है? तो बोलोगे सर वॉल्यूम कम हुआ है ना। अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो इट्स वेरी ऑब्वियस इसका क्या हो चुका है? कंप्रेशन हुआ है। तो हमारा कुछ प्रोसेस इस तरह से, ओके, दिस इज 0.1 एंड यस दिस इज 0.2, दिस इज V2 and this will be V1, okay. So the polytropic index, that means n हमें पता है वॉल्यूम and this value is 1.2. So the work done, my dear friends, tell me what will be polytropic work done। अगर हम work done की बात करेंगे तो हमेशा होता है बच्चों, क्या बताओ? P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2 अपॉन n माइनस 1, है ना, या फिर इसको भी कर सकते P माइनस ऑफ P अपॉन n माइनस 1। सो इस क्वेश्चन में आपको P1 पता है, V1 पता है बच्चों, P2 भी पता है, नहीं n भी पता है, 1.2 नहीं पता है, तो P2 नहीं पता है। तो P2 कैसे निकाल सकते हो? तो सर पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन क्या होता है? Pv के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P1 V1 के पावर n इक्वल टू, माय डियर फ्रेंड्स, P2 V2 के पावर n, है ना। सो यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है? P2। तो P2 क्या हो जाएगा बताओ? सो आप बोलोगे सर P1 और V1, ये V2 है ना हमारा, अपॉन V2 के पावर n माइनस 1 हो जाए, n हो जाएगा, है ना। सो P1 कितना है सर? सो दिस इज गिवन 110। सर V1 कितना है सर? 5 अपॉन 2.5 के पावर कितना है माय डियर फ्रेंड्स? n कितना है? 1.2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आपको P2 का वैल्यू आ जाएगा, एंड बाय सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ P2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 252.713 किलो पास्कल, ओके। जस्ट पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप क्या करो यहाँ पे पुट कर दो। सो जो अगर हम W की बात करेंगे, सो व्हाट विल गेट, अगर हम W की बात करेंगे बच्चों तो W क्या हो जाएगा? दिस विल बी सर P1 इज हाउ मच? 110 P1, V1 is what? 5 minus P2 is how much? 252.71 V2 how much? V2 is 2.5 upon n minus 1, what is n? 1.2, so 1.2 minus 1, okay. By solving this, my dear friends, by solving this we will get the value of W and this will come out to be minus of 408.91। सो यहाँ पे माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा बिकॉज माइनस आ रहा है, तो आपको पुट करना है माइनस ऑफ 408.91
और ये किलो जूल में पूछ रहा है, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा बच्चों? विल कम्स इनटू द किलो जूल। सो इजी क्वेश्चन था, हीटर वर्क का क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट आपको ये याद रखना था कि अगर हम वर्क डन की बात करूंगा तो जो पॉलीट्रॉपी का वर्क होता है हमारा ये होता है, और इक्वेशन याद रखना, पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से आपको P2 निकालना था। एक बार आपका P2 निकल जाएगा, आप आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।